sum. Average due date का next sum, that is pamphlet sum number 3. Take out your pamphlet, everybody. We are doing sum number 3. Okay. Now this sum is similar to the second sum for which you saw the video lecture yesterday. Are you getting it? So what I want from your side is कि आप sum पहले पढ़ना शुरू कर दो. आप sum पहले पढ़ना शुरू कर दो. Make the table, find out the due dates and all, and then I would be helping you as and when required. I don't intend to completely do the sums on my own. तुम पहले start करो. तुम देखो कहीं पर भी तुम अटक जा रहे हो, नहीं आंसर आ रहा है, तो मेरी हेल्प लो. चलो स्टार्ट करो. सम नंबर 3 ऑफ योर पैम्पलेट. कम ऑन, स्टार्ट. Sum number 3. But here is the sum. Here is the sum. A trader having accepted the following several bills on due on the different dates now desires to have these bills cancelled and accept a new bill for the whole amount payable on the average due date. अब देखो उसने 5 बिल एक्सेप्ट किए थे पहले. 1 मार्च को, then 10th March, 5th April, 20 April and 10th of May. And the tenure of the bills were given to us 2 months, 3 months, 2 months, 1 month and all. Required to find out the said average due date. But start the sum, come on. Start the sum, come on. But again, it's a very easy sum. Come on, it's a very easy sum. But don't worry. I would also be solving along with you. Don't worry. But first, you start. Come on. But I hope you made the table. I hope you made the table. But I would also be doing that. Come on. I would also be doing that. I would also be making the table. But then I will not write the due dates. वो मैं तुमसे पूछ के करूँगा. 1st March 2017. The period of the bill is 2 months. The period is 2 months. Due date, I'll ask it from you. 400 rupiah is the amount, 400 rupees. Then second, 10th March 2017. बड़ा पीरियड देखो जरा कितना है. The period of the bill is 3 months and the amount is 300. Then the third bill I drew on 5th of April. The third bill I drew on 5th of April. The period of the bill is 2 months and the amount is 200. The amount of the bill is 200. Then the fourth bill I drew on 20th of April 2017. The period is 1 month. The period of the bill is 1 month and the amount is 375. Then next is 10th of May 2017. 2 months and the amount is 500.
But I am ready with the table, but only the missing part is the due date. The missing part is the due date, which you need to tell me and I'll write it down. The missing part is the due dates, जो आप कहेंगे और फिर मैं लिखने वाला हूं. चलो फटाफट ये पहले टेबल बना लेंगे. फटाफट इतना टेबल बना लेंगे. चलो बेटा टेबल बना के ड्यू डेट्स आपने फाइंड करना शुरू कर दिया है. बेटा ड्यू डेट्स फाइंड करना शुरू कर दिया है. टेल मी द फर्स्ट, मैसेज मी द फर्स्ट बिल का ड्यू डेट. एवरीबॉडी फर्स्ट बिल का ड्यू डेट. फर्स्ट बिल्स ड्यू डेट प्लीज मैसेज. ओके बेटा मैसेज आने लगे हैं और कम लोगों के मैसेज आने लगे हैं, ये बात अलग है. कम लोगों के मैसेज आ रहे हैं. 4/5/2017, 4/5/2017, दैट्स द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल. देखो हमने 1/3 को बिल बनाया 2 मंथ्स के लिए, सो 1 मार्च, और 2 महीने के लिए है तो 1 अप्रैल और 1 मई, और उसमें हम 3 दिन का ग्रेस ऐड करेंगे. तो 4/5/2017, 4/5/2017, that would be my due date. 4/5/2017, that would be my due date. Okay, but the time has come. Get me the due date for the second bill. Come on, get me the due date for the second bill. बेटा कोई 8/6 का मैसेज आया मेरे को, किसी का 8/6 का मैसेज आया. सुजल का 8/6 का मैसेज आया. बेटा 8/6 इज द रॉन्ग आंसर. 8/6 इज द रॉन्ग आंसर. 8/6 इज द रॉन्ग आंसर. बहुत बढ़िया. हाँ सुजल अनम्यूट. सर वो थर्ड का है. अच्छा तो बेटा सेकंड का पहले मैसेज किया. अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है. सारू सारू सारू. बेटा 10/3 को 3 महीने के लिए 10/3 10 मार्च. सो अगर 10 मार्च है तो 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 13 जून. बेटा 13 जून 2017 will be my due date. 13 जून 2017 will be my due date. Now बेटा what you do, pay attention. What you do, 3 4 5 तीनों के आंसर लिख लो. 3 4 5 तीनों के आंसर लिख लो. अगर आपने तीनों के आंसर लिख लिए हैं तो give me a thumbs up. I would give my answer and then you check whether your answer is correct or incorrect. Come on. 3 4 5 बेटा 3 4 5 all the 3 dates की आप ड्यू डेट्स लिख लीजिए. आई एम गिविंग यू टाइम. कम ऑन, पूरे इसकी आप ड्यू डेट्स लिख लीजिए. आई एम गिविंग यू टाइम. कम ऑन. And beta, once you are done, give me a thumbs up. Once you are done, give me a thumbs up. Okay, beta, getting thumbs ups in installments, but getting thumbs up from all. That's good. इंस्टॉलमेंट में आ रहे थम्स अप, लेकिन सबसे आ रहे हैं, वो ये अच्छी बात है. चलो करते हैं द नेक्स्ट वन. कम ऑन करते हैं.
5/4 को 2 महीने के लिए किया है, 5/4 तो 5/5 5/6 8/6 2017 will be my due date 8/6/2017. Then 20/4/17 एक महीने के लिए 20/4 तो 23/6/2017 23/6/2017 बराबर है 23/6/2017। क्या बोल रहे हो यार, गलती करी है? गलती करी है बेटा, मुझे भी पता है गलती करी है, लेकिन कितने जन गलती को समझ पा रहे हैं? वो बेटा जाग रहे हैं, बाकी सारे बेटा सो रहे हैं। जानबूझ के गलती करी है, मुझे भी पता है आंसर गलत है मेरा। बेटा अगर इतनी सारी ड्यू डेट्स फाइंड आउट कर सकता हूं तो एक भी और कर ही सकता हूं, लेकिन मैंने 23/6 जानबूझ के लिखा है। एक महीने के लिए हो तो इट विल बी 23/5। बेटा जागने के लिए, तुमको जगाने के लिए करे हैं। और बेटा खाली 26 लोगों ने मैसेज किया खाली मेरे को कि सर गलत है, बाकी सबने तो लिख डाला। हाँ सर 23/6 आएगा, लिख डालो लिख डालो। बढ़िया बेटा, लास्ट का जरा ड्यू डेट फाइंड आउट करेंगे, लास्ट वन, और आंसर कंफर्म करो। द लास्ट वन 10/5 का 2 मंथ्स के लिए, तो 13/7/2017 will be my due date, 13/7/2017। ओके बेटा, इन सब के ड्यू डेट्स बिल के सबके आ गए। अच्छा बेटा, ईमानदारी से अपनी जगह से खड़े हो जाओ। अगर तुमने सब सही करे हैं तो, सारी ड्यू डेट सही आई हैं तो अपनी जगह से खड़े हो जाओ। अरे अरे बेटा, जैसे जैसे थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले कैसा नेशनल एंथम के लिए पब्लिक खड़े हो जाती है, वैसी जनता खड़े हो गई है, नेशनल एंथम गा रही है। बढ़िया बढ़िया, बैठ जाएंगे बेटा, बैठ जाएंगे, शाबाश। अच्छा, अब इसमें से मेरे को बेस डेट कौन सी आएगी मैसेज करो। कौन सी मेरी बेस डेट आएगी मैसेज करो। बेटा कोई आंसर ऐसा कर रहा है मेरे को, फर्स्ट विल बी द ड्यू डेट, फर्स्ट। बेटा फर्स्ट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज फर्स्ट? फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट फरवरी? ओके ओके बेटा, ड्यू डेट्स को देखते हुए जो बेस डेट आप लोग कह रहे हैं लेने के लिए, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दिस वुड बिकम माय बेस डेट 4/5/2017, क्योंकि ये सब डेट्स में से अर्लीस्ट डेट है, ये सारी डेट्स में से अर्लीस्ट डेट है। तो माय बेस डेट, बेटा राइट इट डाउन एवरीबॉडी, 4/5/2017, that would be my base date। 4/5/2017, that would be my base date। Are you getting it? But the next step, ये सारी डेट्स में से जो अर्लीस्ट डेट है, सबसे जो पहले आती है, उसको हम अपना बेस डेट लेते थे, इफ यू रिमेंबर। ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। आगे द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, तो पहला वाला तो 0 ही आएगा, 4/5 से लेके 4/5 इट विल बी 0। ओके, देन 4/5 से लेके 13/6, बेटा 4/5/2017 से हमें चलना पड़ेगा 13/6/2017। तो इसमें मई के कितने दिन लेंगे हम? मई के 31 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, तो उसमें से 4 दिन निकल गए, तो बचे 27 दिन, एंड जून के 13। तो बेटा 27 और 13 40 डेज हो रहे हैं, चेक करो तो 40 डेज। बेटा आर यू गेटिंग 40 डेज टोटल कंफर्म? 40 days, are you getting it? 23 and 13, 40 days।
40। बेटा एक जन ने 39 का आंसर भेजा है। अल्लाह यार, बेटा कैसे समझाऊं, महीनों में कितने दिन होते हैं, कैसे समझाऊं। बेटा थर्ड वन का आंसर भेजो, चलो थर्ड वन का मुझे आंसर भेजो, नंबर ऑफ डेज का। बेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 4/5। 2017 से लेके हमको जाना है 8/6/2017 तक। मतलब बेटा वापस मई के 31 डेज और जून के, अरे मई के 31 कहाँ आएंगे, मई के 27 डेज और जून के 8, तो 27 and 8, बेटा 35। But I'm getting 35. The next one 35. The next one I'm getting is 35. बढ़िया बेटा, नेक्स्ट वन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वन 4/5 2017 से हमको जाना है 23/5 2017। मतलब ये तो सेम महीने में ही हमको डेज गिनने हैं, तो मई के कितने दिन आएंगे। 4 तारीख चली गई बेटा 4 तारीख चली गई बेटा, 4 से 23 तारीख तक गिनो चलो। એટલે बेटा 5th मई से स्टार्ट करना पड़ेगा। 5th मई गिनो गिनो गिनो, 5th मई से चालू करो गिनना। 5th मई 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 10 दिन। 15 16 17 18 19 20 21 22 23, बेटा 19 डेज आ रहे हैं। 19 डेज आई एम गेटिंग बेटा, 19 डेज। कुछ लोगों ने मुझे 20 20 20 मैसेज किया, बट इट्स 19 डेज। सो यहाँ पर हम 19 मैसेज कर पे, मतलब जो आंसर आ रहा था मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ डेज 19। ओके, नंबर ऑफ डेज 19। एंड बेटा लास्ट 4/5 2017 से हमको जाना है 13/7/2017। मतलब मई के 27 डेज, मई के 27 डेज, जून के 30 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 13 डेज। सो बेटा जरा कंफर्म करो यार, ये इतना, मेरा तो 70 आंसर आ रहा है यार, बहुत लंबा आंसर आ रहा है। 70 सो हम यहाँ पर ये 70 लिख देंगे। कम ऑन, हम यहाँ पर ये 70 लिख देंगे। ओके बेटा, ये वर्किंग्स में किसी को डाउट आ रहा है? वर्किंग्स में किसी को डाउट आ रहा है बेटा, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी द डाउट। If you have any doubt in this workings, please raise your hand and ask me the doubt, please. But are done? No doubts? Amount and product, चलो find out करते हैं product. But let's find out the product. पहले वाले का तो 0 ही आएगा. The first one will be 0. Then 40 into 300, that is 12,000.
35 into 200, 7,000. 19 into 375, 7125. 70 into 500, 35,000. बेटा टोटल करते हैं, चलो 400 प्लस 300, 200, 375 and 500, that's 1775. 12,000, 7,000, 7125 and 35,000, 61,125. बेटा ऐसा आ रहा है मेरा टोटल, आपका क्या आ रहा है जरा कंफर्म करो। 1775 and 61125. Are you getting these totals? 1775 and 61125. Are you getting this total? Give me a thumbs up if you are getting that. बढ़िया बढ़िया बेटा, टोटल आ रहा है, बढ़िया। So बेटा get me the average period. Everybody come on, get me the average period फटाफट। बेटा get me the average period. Let's do that. Come on. What was the formula for average period? The product upon the total amount. Average period is product upon the total amount. बेटा मेरा प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 61225, 61125। इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे 1775। तो 61125 डिवाइड बाय 1775, बेटा 34.43 आ रहा है। 34.43 डेज, जो हम राउंड ऑफ कर देंगे टू 34 डेज, जो हम राउंड ऑफ कर देंगे 34 डेज। ओके, एंड अब बेटा एवरेज ड्यू डेट फाइंड करो। मेरा बेस डेट क्या था? 4/5/2017 में मुझे प्लस करने हैं, 34 डेज। 4/5/2017 में हमें प्लस करने हैं 34 डेज। तो बेटा मई के महीने में कितने दिन बचे? 27। और जून के मंथ्स में मेरे को कितने लेने के? मुझे सिर्फ 34 डेज ऐड करने, उसमें से 27 तो आ गए, तो जून का 7। तो देखो 34 डेज बन सकते हैं, जून के 7 डेज करेंगे तो टोटल 34 डेज आ जाएगा। सो बेटा मेरा एवरेज ड्यू डेट का फाइनल आंसर 7th of June 2017। बेटा 7th of June 2017, that would be my final answer for the average due date। 7 June 2017, that would be my final answer for the average due date। But any doubt? Any doubt how we calculated it? खुशबू कौन सा टेबल मैं शो करूं आपको? कौन सा टेबल शो करूं? विच टेबल? खुशबू अनम्यूट। सर फर्स्ट वाला एवरेज ड्यू डेट वाला। उसमें बेटा क्या गलती कर रहे हो?
मेरी एक मिस्टेक है शायद, ये चेक करना है। 0 बेटा, is the sum and all understood properly? Is the sum understood? The due date जो अपना आंसर आया वो समझ में आ रहा है? Okay. But now what you are supposed to do is कि जो पैम्पलेट का सम नंबर 1 है वो आपको ट्राई करना है एज योर होमवर्क। पैम्पलेट का जो सम नंबर 1 है, wherein the tenure is a fixed 90 days का टेन्योर दिया है। देखो उसमें सम नंबर 1 में हर एक बिल की ड्यू डेट्स के लिए 90 डेज का टेन्योर दिया हुआ है। आर यू गेटिंग इट? तो वो वाला सम आपको होमवर्क में करना है, वो वाला सम आपको होमवर्क में करना है, ट्राई। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कौन सा सम आएगा आई डोंट नो, वो मैं देखता हूं कि कौन सा सम मुझे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट करो, अपने सैटरडे मिलते हैं फिर। वी मीट ऑन सैटरडे। ओके ओके, बड़ा अनम्यूट हो जाओ। बाय सर। या बाय बाय सर। सर, बाय सर। Bye, sir. सर। बाय। बाय बाय। Bye, sir. Good day, sir. बाय। Bye, sir.